رجوع ہو تو میں تمہاری طرف رجوع ہوں گا. رب الفاظ فرماتا ہے لیکن تم کہتے ہو کہ ہم کس بات میں رجوع ہوں. کیا خدا نے کہا تم میری طرف رخ کرو, تم میری طرف آؤ, میرے گھر میں آؤ تو میں آپ کے گھر میں آؤں گا, میں آپ کی طرف توجہ کروں گا. جب آپ میری رسپیکٹ نہیں کریں گے, جب آپ میری عزت نہیں کریں گے, مجھے کچھ جانو گے نہیں, تو میں آپ کو بھی کچھ نہیں جانوں گا, کچھ نہیں سمجھا گا. رجوع کرنا, میری طرف رخ کرنا, میری طرف توجہ کرنا. آگے پڑھیں گے. کلام میں سے ملاکی کی کتاب 3 باب. اب آپ کا خداوند کیا کہتا ہے, تم نے مجھے ٹھگا. ہم کہتے ہیں کس بات پہ؟ یہ میں نے نہیں لکھا, یہ آپ کے خداوند نے لکھا. کس بات پہ ٹھگتے ہیں؟ کس پڑھے گی؟ کیا کوئی آدمی خدا کو ٹھگے گا؟ پر تم مجھ کو ٹھگتے ہو اور کہتے ہو ہم نے کس بات میں تجھے ٹھگا؟ دے یقین اور ہدیہ میں. آمین. دے یقین اور ہدیہ میں. آگے. بس تم سخت ملعون ہوئے کیونکہ تم نے بلکہ تمہاری قوم نے مجھے ٹھگا. آمین. تم نے بھی اور تمہاری پوری قوم نے, پورے جو لوگ ہیں جتنے بھی دنیا کے اندر وہ ٹھگتے ہیں خدا. ہم اس کا پورا ہدیہ نہیں دیتے. بہت مشکل ہم سمجھتے ہیں ہدیہ دینا. 150 کی کوئی ویلیو نہیں ہے آج خدا کی. 150 ہم کسی بچے کو دیں تو وہ بھی کہتا ہے عید والے دن میں نے 100 روپئے دیتے ہیں, لیکن روزانہ دے 150 کھا جانا ہے, وہ دی کوئی ویلیو نہیں. ٹھگتے ہیں ہدیے اور چندے میں. دے یقین میں ہم ٹھگتے ہیں. خدا کی طرف کیا کرو؟ رخ کرو, رجوع کرو. جب ہم اس کی طرف رجوع کریں گے پھر خدا ہماری طرف رجوع کرے گا. تو خدا ہماری طرف رجوع کرے گا, چاہے کسی بھی صورت میں اس کی طرف آ جائے. اب ہم پڑھیں گے متی کی انجیل اور 10. خداوند کے زندگی بخش کلام میں سے متی کی انجیل 6 باب 9 سے 10 آیت. بس تم اس طرح دعا کیا کرو کہ اے ہمارے باپ تو جو آسمان پر ہے, تیرا نام پاک مانا جائے, تیری بادشاہی آئے, تیری مرضی جیسے آسمان پر پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو. آمین. ہم کس کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ کرتے ہیں خدا کی مرضی کو پورا؟ سچ بتانا ہے. خدا کی مرضی کو پورا کرتے ہیں؟ دوبارہ پڑھیں. کس طرح دعا کرنی ہے؟ اے ہمارے باپ. کون کون اس کو باپ سمجھتا ہے؟ سب ہم سمجھتے ہیں باپ. واقعی باپ ہے آپ کا. میں مانتا ہوں, آپ مانیں یا نہ مانیں, میں مانتا ہوں کہ وہ میرا باپ ہے جس نے مجھے زندگی دینی ہے. آپ کو بھی زندگی اسی باپ نے دینی ہے, یا کہ آپ کے باپ نے دینی. آپ کے باپ نے تو روٹی ہی دینی ہے. ہزاروں پیسے کما کے, محنت کر کے, مزدوری کر کے, آٹا, دال, چاول, چینی, گیہوں, پتی لے آ کے دینی ہے. تو زندگی کس نے دینی ہے؟ آپ کے باپ نے دینی ہے. اس باپ کی بات کیا ہے؟ بس تم کیسے دعا کرو؟ اے ہمارے باپ کہہ کے دعا کرو. اور باپ کیا کہتا ہے؟ باپ کا نام لے کے دعا کرنی ہے. اور باپ کیا کہتا ہے آگے؟ تیرا نام پاک مانا تیرا جائے. نام پاک مانا جائے. اس کے نام کو ہم پاک مناتے ہیں, پاک سمجھتے ہیں. اس کی نام کی ہم عزت ہی نہیں کرتے, اس کے کلام کی عزت ہی نہیں کرتے. اس کا نام سن کے, ہم اس کے کلام کی بات کو سن کے ہم ناراض ہو جاتے ہیں. میں یہ نہیں ناراض, یہ باپ کا کلام ہے. ہم اس کی مرضی کیوں نہیں پوری کرتے؟ آگے بڑھیں. تیری بادشاہی آئے. تیری بادشاہی آئے. کہاں پہ آئے گی؟
जब मैं उसकी मर्जी पूरी करूंगा वो मेरे घर में आ जाएगा। हालेलुया। उसकी हालेलुया। बादशाही मेरे घर में आ जाएगी। जब उसकी बादशाही आएगी, जब वो आ जाएगा तो मेरे घर में हर चीज मुहैया होगी। आमीन। आमीन। पैसे की फिक्र ना करें, पैसा ना ढूंढे, पैसे के पीछे ना दौड़े, जिंदगी पाए, जिंदगी पाए, जरूरियात की चीजें मांगे, वो देने वाला है, उसके पास सब कुछ है। उसने अपने कलम मुकद्दस के अंदर लिखा हुआ है, ऐ बेटी मांग तो मैं तेरा मुंह भर दूंगा। ये किसने कहा है? खुदावंद यीशु ने कहा है, आपके बाप ने कहा है, नहीं, किसी आम शख्स ने नहीं कहा, आपके बाप ने कहा। उसकी बात को पूरा करो। आगे तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हम जमीन पर कौन है? हम हैं। हम उसकी मर्जी को पूरा करते हैं? नहीं करते उसकी मर्जी को। तो फिर हम उसको बाप क्यों कहते हैं? फ्रूट की किताब में लिखा हुआ है, तुम मुझे बाप बाप क्यों कहते हो? जब तुमने मेरी बात को मानना नहीं है, जब तुमने मेरे कलाम की बातों को सुनकर उस पर अमल नहीं करना, तो मुझे बाप ना कहना। हम फिर कहते हैं बाप। हम दुनियावी बुरे हो के भी कहते हैं भैया अपने बच्चे को अगर तुमने बाप माने तो फिर मेरा कहना मान। मुझे बड़ा कहना नहीं माना, तुमने आज तो बाद बाप नहीं कहना, आज तो बाद मैं तेरी माँ नहीं आ, आज तो बाद मैं तेरा बाप नहीं आ, क्योंकि तुम मेरा कहना नहीं मानता। तो वो क्या बाप आपको माफ करेगा जिसने आपकी खातिर शरीर पर जान दे दी है? आज कौन है बाप जो अपने बेटे की भी जान देता है? क्या उसने ऐसा किया? क्या उसने ऐसा कहा है? उसने कोई गुनाह किया है? उसने कोई चोरी की है? उसने कोई झूठ बोला? उसने किसी के साथ लड़ाई की है? नहीं की। उसने नहीं कहा मेरी गलती नहीं है, मेरा कोई गुनाह नहीं है, इन्होंने सजा दे। उसने कहा आमीन। सजा उसने अपने ऊपर ले लिया आपकी खातिर, आपको उसने आजाद किया। हम फिर क्या है? गुनाह के जुए में जाते हैं, गुनाह की तरफ जाते हैं। ऐसा ही है। आज हम इस कलाम को गौर से सुनेंगे, बोलेंगे खुदा क्या है? हमारा बाप है और आप उसके बेटे और बेटियां हैं, और आपके साथ साथ फरिश्ते भी होते हैं। किस किस का ईमान है कि मेरे साथ फरिश्ते हैं? हैं फरिश्ते? कभी उनको आपने हुक्म दिया? क्या आप दे सकते हैं या नहीं दे सकते? नहीं दे सकते। आपका अख्तियार है फरिश्तों के ऊपर, आपका अख्तियार है फरिश्तों के ऊपर। फरिश्ते भी उसकी मर्जी के बगैर नहीं चलते और हम उसकी मर्जी के बगैर चलते हैं। फिर भी गौर करें, फरिश्ते को जो हुक्म दिया जाता है वो उसी वक्त उसका फरिश्ता जो है यीशु को जाके क्या करता है? नेकी भी लिखता है। और जब वो गलत काम करता है तो फरिश्ते को हुक्म है कि उसने आपको माफ नहीं करना, जिन्हें मर्जी सोने मांगी उन्हें माफ नहीं करना, फरिश्ते ने तुम्हारी गलती लिखी है। फरिश्ते उसकी मर्जी करते हैं, उसकी मर्जी में चलते हैं, पूरी करते हैं, लेकिन हम उसकी मर्जी पूरी नहीं करते। फिर भी खुदावंद ने हमें अख्तियार दिया है कि इन फरिश्तों को भी तुम हुक्म दे सकते हो। जब दुआ करते हैं तो हम क्या कहते हैं? ऐ बाप, ऐ खुदावंद, मैं तेरे पाक फरिश्तों का पहरा लगा देता हूँ उस घर की चादर। आपका हुक्म हुआ, आपके हुक्म को उन फरिश्तों ने मान लिया है। कभी करके देखें, क्योंकि आप इसलिए नहीं अपने अंदर रखते, आपके अंदर ईमान नहीं है। मैं ईमान से कहता हूँ, मैं फरिश्तों का पहरा जहाँ पे लगाता हूँ, मेरा यीशु उनको आर्डर दे देता है। आमीन। आपके यीशु के अंदर पावर है, आपके अंदर यीशु की पावर है। क्यों पावर है? आपके अंदर यीशु का रूह है। आमीन। आमीन। यीशु का रूह है आपके अंदर, तो आप यीशु के जितने भी फरिश्ते हैं उनको इख्तियार दे सकते हैं उनके पास, और आप फरिश्तों को हुक्म कर सकते हैं, फरिश्तों को हुक्म दे सकते हैं। कभी देखे यीशु के पाक लहू की बार आप लगाते हैं, यीशु के उन 24 फरिश्ते जो होते हैं उनको हम हुक्म देते हैं कि बाप, मैं 24 फरिश्तों को जो 24 घंटे 24 आवर्स तख्त के आगे पीछे कदूस कहते हैं, मैं उन्हीं फरिश्तों का
पहरा मांगे। आमीन। आमीन। यीशु जरूर उनको भी आदत देता है कि मेरे बंदे का कहना आपके पास इतना अख्तियार है। आप यीशु की इज्जत नहीं करते। अगर आप यीशु की इज्जत करें तो यीशु के इतवार का फिक्र करें। आप यीशु के इतवार का दिन जो आपके अंदर खुदा ने दिया है उसकी फिक्र करें। आज कौन कौन फिक्र करते हैं? नहीं करते फिक्र। फिक्र करेंगे तो अपनी तैयारी करेंगे, उस टाइम का कदर करेंगे जो टाइम खुदा के हैकल के अंदर आने का है उसकी फिक्र करेंगे कि 9 बजे का टाइम है और 11 बजे इबादत फाइंड अप होती है और हमें उसकी फिक्र होनी चाहिए। कोई भी फिक्र नहीं करता। आप अपने बाप की फिक्र नहीं करते। यीशु आपकी फिक्र करता है, उसके फरिश्ते भी आपकी फिक्र करते हैं, लेकिन आप उसकी फिक्र नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्यों नहीं फिक्र करते? क्यों नहीं फिक्र करते यीशु की? क्यों नहीं यीशु की इज्जत करते जिसने आपकी खातिर अपने बदन के ऊपर बहुत सारे जुल्म जितनी बार भी हम तौबा करें तो कम है। इज्जत नहीं करते। इज्जत कैसी करनी है? अपने हाथ पांव को देखें, मेरे हाथ साफ हैं, मेरे पांव साफ हैं, ये धोने से नहीं। आज पूरे हफ्ते के अंदर आपने इन पांव के साथ चल के क्या गुनाह किया है? कभी गौर करें। खुदा के पास आने से पहले उस कदमों के लिए माफी मांगे। जो कदम आपके गुनाह की तरफ गए हैं उन हाथों की यीशु से माफी मांगे। जिन हाथों ने खून किया है, जिन हाथों ने चोरी की है, जिन हाथों ने दूसरे का हक छीना है, तो ये सोच के यीशु के पास आए। उससे पहले माफी मांगते हैं, खुदा मेरे लिए हाथ कबूल कर ले। हम हाथ उठा लेते हैं इन हाथों के। देखिए इन हाथों ने किया क्या है। हाथ उठ जाने से कुछ नहीं मिलेगा, चर्च के आने से कुछ नहीं मिलेगा। मिलना है तो आपके इज्जत करने से मिलेगा, जो आप यीशु की इज्जत करेंगे। आमीन। इज्जत कैसे करनी है? सिर्फ कपड़े चेंज करके, मुंह धो के। आज हमें ये नहीं पता लड़की कौन है, आज हमें ये नहीं पता लड़का कौन है। यीशु के पास आने के लिए हमें ड्रेसिंग का नहीं पता कि हमने ड्रेसिंग कौन सी करनी है, नहीं पता। अभी तो मैंने क्वेर की बात की है। अगर अवाम की कलीसिया की बात करूं, खुदा का कलाम चेक करता है तो कलीसिया नाराज हो जाएगी, क्योंकि ये कड़वा है। यीशु कलाम कड़वा है, ये आग की तरह है, ये एक शोला है, चिंगारी निकलती है, हम डर जाते हैं, इससे डरते हैं। आप कहेंगे हमारा खातम ठीक नहीं है, हमारा खातम ठीक नहीं है, लेकिन आपका खातम भी ठीक नहीं है तो आपका यीशु भी ठीक नहीं है, आपका यीशु भी ठीक नहीं है। क्योंकि इसी कलाम के अंदर से आपका खातम में सुनाना है। मैंने कभी दूसरी बेशुमार किताबें होती हैं जो इसमें नोट करके अलग किताबें बनी हुई हैं, कभी नहीं मैं मैसेज तैयार करता, मैं सिर्फ इसी के अंदर से मैसेज तैयार करता हूँ। आप अपने आप को ठीक कर लें, अपनी जिंदगी चेंज कर लें। मत देखें मेरी माँ मुझसे नाराज हो जाएगी, मेरा बाप मुझसे नाराज हो जाएगा कि मैं खुदा के कलाम के लिए क्या कह रही हूँ। बहुत से बाप, बहुत सी माँ, बहुत से भाई कह देते हैं तू रहने दे, मैनू भी पता है सारा, तेनू पता है तो फिर पढ़ के वेख तो अमल करके भी। बहुत सारे घर में ऐसे भाई कह देते हैं, बहनें कह देती हैं तू बह जा, नहीं खलो जाए, बाइबल पढ़ने वाली के सुनाने वाली सारी ये बह जा के देखा तू पादरी बहु बन गया, 4 दिन बहु ना जाना, 4 दिन चल जाना, तू सानू सुनान लग पिया असीं तेरे तो वड्डे आ। वड्डे कद नाल वड्डिया नहीं हुंदा, उमर नाल वड्डिया नहीं गिनिया जांदा, ਉਹਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਤੇ ਕੰਮਾਂ ਨਾਲ ਵੱਡਿਆ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। हालेलुया, बाप बड़ा है, उसकी बातें बहुत बड़ी है, उसकी बातें बहुत बड़ी है।
आप खुदावन से डरते नहीं हैं। आज हम क्या करते हैं, जब चर्च जाने के लिए आते हैं, बहनें बहुत सी हैं, जो बहुत से ऐसे लोग हैं, शुक्र है मेरे चर्च के अंदर काफी कम हो गए हैं, पहले पहले आता था तो बहुत होते थे, पैंट पहन लेती हैं बहनें, छोटी सी शर्ट पहन लेंगे, बाल इकट्ठे करके कैप पहन लेंगी, हमें रास्ते में पता न चले, मुझे कोई पहचान ना ले। तो आपका बाप जानता जी, आपका बाप देखता है, आपका यीशु देखता है। उस बाप से बचे जिसने आपको जिंदगी देनी है। दूसरे बाप से तो आप छुप सकते हैं। बेटे ऐसे हैं, बहुत बड़े बड़े बाल रखते हैं, वो ड्रेसिंग ऐसी करते हैं, कहने यार कोई गल नहीं, कुड़ियां जी तो नहीं पालेंगे, थे केड़ा कोई नाम लिखा है। बहुत से बेटे ऐसे हैं जो दुआ के लिए निक्कर पहन के आ जाते हैं, आप शर्ट बिल्कुल हाफ जो है वो पहन के आ जाते हैं। ये यीशु की इज्जत है। बहुत सी प्यारी बहनें हैं, बड़ा खूबसूरत कलाम सुना रही ने, बड़ी खूबसूरत दुआ कर रही ने, दुपट्टे का पता ही नहीं, ड्रेसिंग का पता ही नहीं कितने बाजू उत्ते जा रही है, उन्होंने नहीं पता कि मैं की ला रही हूँ कि मैं तो मसला जो है को देखेगा तो की करेगा, पहले आपको सुना मिलेगी कि आप अपना ड्रेस अच्छा करें ताकि आपकी तरफ कोई देखे ही ना। हालेलुया। यीशु ड्रेसिंग की बात नहीं करता है, कलाम मुकद्दस के इस बेटी ने पढ़ा, मेरे पे यकीन ना करें, जो पढ़े रहे इसने पढ़ा है पूरी कलाम को, पूरी बाइबल को पढ़ा है, इससे पूछे क्या क्या लिखा हुआ। ये अगर आपको सुनाया तो कहेंगे ए बेटी खलोती ड्रेसिंग बता, आपने ड्रेसिंग सही नहीं है। बहुत सारी मेरी बहनें नाराज हो जाती है, बहुत से मेरे भाई नाराज हो जाते हैं ड्रेस से, जब कोई बात करता है तो प्लीज मेहरबानी करके अपनी ड्रेसिंग को ठीक किया करें, अपने सर को ढका करें। बेटे खुदावंद पाक खुदा जलाल से आसमानी बाप, मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है, मैं बड़ी आजिज़ी, बड़ी प्यार मोहब्बत के साथ खुदा हम तेरे पास, तेरे दूर, तेरे कदमों में आज हम सब का तेरे पास आना, झुकना, बैठना खुदा हम तुझे पसंद आए। आज जितने भी वो गीत गाए गए हैं, जितनी भी दुआएं हुई हैं, अपने हुजूर कबूल करना। हम सब का आज तेरे पास आना, झुकना, बैठना खुदा हम तुझे पसंद है। हमारे आने से पहले ही खुदा हमको हमारे इस जगह पर मौजूद होता है, क्योंकि तेरा वादा है जहाँ 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठे होते हैं मैं वहाँ पे मौजूद होता हूँ। वापस मानी आज तेरे बेटे बेटियां जिन्होंने अपने सर को झुकाया हुआ है, अपनी आंखें बंद की हैं, अपने दिल को तेरी तरफ किया हुआ है, अपना ज़हन सोच ख्याल तेरी तरफ किया, खुदा उनको तब्दील कर देना, खुदा उनकी जिंदगी के अंदर वापस मानी बरकत पर बरकत दे देना। वापस मानी मेरा दिल शुक्रगुजारी से भरा है कि तूने पूरे हफ्ते भर हमारी बड़ी हिफाजत नहीं कर, आज पाक दिन मुकद्दस दिन जो तूने हमारी जिंदगी के अंदर दिया, इसका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। जितने भी तेरे बेटे बेटियां आज इस पाक दिन को पाक दिन मना रहे हैं, इस दिन की इज्जत करते हैं, रिस्पेक्ट करते हैं इतवार की, तो खुदा उन्हें बड़ी बरकत जिंदगी से तंदुरुस्ती देना। आज जितने तेरे बेटे बेटियों ने खुदा तेरे जो हदिया तेरे हुजूर का इस हदिये निजरानी को कबूल कर, खुशी से देने वालों को बाप को अजीज रखता है, सरफराज करता है, और बरकत पर उन्हें तू बरकत पर बरकत देता है। बाप आसमानी घर को तेरे पाक हाथों में लेता हूँ, इंतजामिया टीम को खुदा तेरे पाक हाथों में लेता हूँ, सिक्योरिटी वाले भाई को तेरे पाक हाथों में लेता हूँ, इंतजामिया बहनों को भी खुदा तेरे पाक हाथों में लेता हूँ, हाजिर जमात को तेरे पाक हाथों में लेता हूँ। इन सब को छू, बड़ी बरकत, तेरा हाथ छोटा नहीं कि छू ना सके, तेरे कान भारी नहीं कि हमारी आवाज ना सुने, तू हमेशा हमारी आवाज को सुनता है और सुन के हमारे ईमान के मुताबिक खुदा तुम्हें बरकत दा। अगर हाजिर जमात में से कोई किसी किस्म की टेंशन है, कोई परेशानी है, कोई बीमार है, किसी मुसीबत में है, तो यीशु के नाम से सारी परेशानी दूर हो जाए। अगर किसी के घर के अंदर कोई बीमारी दुख तकलीफ है, जिसकी वजह से आज खुदा तेरे बेटे बेटियां जो नहीं आ सके, खुदा उस अबलीस को यीशु मसीह के नाम से डांट छिड़कता हूँ, वो अबलीस शर्मिंदा हो, जिसकी वजह से आज खुदा तेरे बेटे बेटियां तेरे हैकल के अंदर नहीं आए। खुदा उन्हें हिम्मत ताकत जज्बा दे, दिलेरी दे, ताकि वो तेरे घर को अंदर आए और तेरे नाम को जलाल देने वाले बने। वापस मेरा ईमान है कि तू सबको देने की कुदरत रखता है, तेरे पास सब कुछ है। तूने कहा जो कोई मुझ पर ईमान लाएगा वो हलाक नहीं होगा बल्कि हमेशा की जिंदगी पाएगा। बाप हम हमेशा की जिंदगी पाना चाहते हैं, बाप हम तुझे ठगना नहीं चाहते, बाप हम तेरे पास आकर तेरे हुजूर कदमों में झुक कर खुदा तुझे सजदा करते हैं। हमारा झुकना मिल बैठना
खुदा मुझे पसंद आए। यहोवा पाक ने एक बार फिर तेरे बेटी में हदिया नजर आती है, इस हदिया गुलाने को कबूल कर। वापस हमारी खुशी से जो देते हैं उसे वक्त पर सदका कुछ मांगे हमने पूरे ईमान से मांगे आपको वाली वक्त तेरे पैर यीशु के नाम से आमीन। अब हमको दुआ करेंगे हमारे खुदा यीशु मसीह में दुआ करिए। आए हमारे बाप जो आसमान में है, तेरा नाम पाक होने जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी दुनिया जमीन पर भी हो। हमें रोज की आज की दे और जिस तरह हम अपने कर्जदार को माफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज हमें माफ कर, हमें आजमाइश में न ला, बल्कि बुराई से बचा। बादशाही कुदरत और जलाल हमेशा तेरा है। आमीन। अब खुदाबाद की मोहब्बत और बरकत शफ़क़त से हमेशा हमेशा बरकत जमात के साथ, बिलखुसूस इस महल्ला के साथ, मुल्क पाकिस्तान के साथ, मुल्क इसराइल के साथ, तमाम चर्च ताक़ों के साथ हमेशा से हमेशा तक मेरे खुदा यीशु मसीह के नाम की सलामती होती रहेगी। खुदा बाप और बेटे और रूह कुद्दुस का हो। खुदा आप सबको बरकत दे।